Good morning, ma'am. Myself Ramandeep Kaur. Today I am here to represent my presentation on topic ideal and non-ideal solution. To learn ideal and non-ideal solution, first of all, we need to aware about some important law, which is Rolle's law. Rolle's law. According to Rolle's law, the vapor pressure of any solution containing a non-volatile solute in a volatile solvent is proportional to the mole fraction of the solvent in the solution. रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है उसके अंदर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट और वोलाटाइल सोलवेंट और वो जो दोनों है वो प्रोपोर्शनल होते हैं सिर्फ और सिर्फ सोलवेंट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल. नेक्स्ट example of Rolle's law. Assume a solution of volatile liquid A and B in a given beaker. Since both A and B are volatile, both particles A and B are in vapor phase. Consequently, the vapor particles of A and B thus exert partial pressure, contributing to the total pressure above the solution. इसके अंदर क्या है कि अगर हम एक बीकर लें और उसके अंदर ए और बी दो वोलाटाइल लिक्विड पाएंगे. अगर दोनों ही वोलाटाइल लिक्विड हैं तो दोनों वेपर फेज़ के अंदर भी जाएंगे. अगर दोनों वेपर फेज़ के अंदर जाएंगे तो कोई ना कोई प्रेशर भी एक्सर्ट करेंगे और प्रेशर है जो अबव दी सॉल्यूशन होगा. इस फिगर में भी दिखा रखा है ए एंड बी दोनों वेपर फेज़ के अंदर है और जो लिक्विड फेज़ के अंदर है वो मॉलिक्यूल वोलाटाइल है. Then Rolle's law formula is P equal to P naught X. इसके अंदर जो P सॉल्यूशन है हमारा वो है वेपर फेस ऑफ द सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. जो X सॉल्वेंट है वो है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट और जो P सॉल्वेंट है वो वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. नेक्स्ट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. To learn the ideal and non-ideal solution, first of all, we need to learn some important points like a homogeneous mixture composed of two or more components is called a solution. जो solution होता है वो दो और दो से ज़्यादा component से मिलकर बनता है. और क्या homogeneous mixture होता है मीन्स वो uniformly distributed है पूरे solution के अंदर. Second point, the component which has the high is the solvent. solution के अंदर जिस कंपोनेंट है वो हाईएस्ट होगी वो सोलवेंट होगा. द सोलवेंट हेल्प डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में भी यही डिटरमाइन करेगा. सोलवेंट है जो यही डिटरमाइन करता है कि जो सॉल्यूशन बनेगा वो उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो क्या होगी. अगर सोलवेंट लिक्विड फॉर्म में है तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो भी लिक्विड में होगा. अगर हमारा सोलवेंट सॉलिड फॉर्म में है तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो भी सॉलिड होगा. नेक्स्ट पॉइंट, A solute is a substance in a solution found in a smaller amount. Solution के अंदर जो कम अमाउंट में पाया जाता है component वो solute होता है. Next point, the solution that has two component is called a binary solution. जिस solution के पास दो component होते हैं उन्हें हम binary solution कहते हैं. Then the binary liquid in liquid solution can be further divided into two terms: ideal solution, non-ideal solution. Meaning of ideal solution. Ideal solution, the solutions which follows Rolle's law at all temperatures and concentration are called ideal solution. Ideal solution वो solution होते हैं जो Rolle's law को follow करते हैं all temperatures के ऊपर और concentration के ऊपर. Characteristics, it should follows Rolle's law. ये Rolle's law को follow करता है. No heat or energy release during the formation of the solution means the enthalpy of mixing should be zero. Delta H mixing zero. मतलब मिक्स करने पे जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस पहले थी उतनी अभी भी हैं. अट्रैक्टिव फोर्स ना बढ़ी हैं और ना ही कम हुई हैं. मीन्स तो कोई एक्स्ट्रा एनर्जी है ना रिलीज भी नहीं होएगी और ऑब्जॉर्व भी नहीं होएगी. तो जो हमारा डेल्टा एच मिक्सिंग है वो ज़ीरो रहेगा. The volume of the solution should be constant means the volume of the solution will be equal to the volume of the component. Delta V mix is equal to 0. वॉल्यूम में V मिक्सिंग है वो भी हमारा 0 रहेगा. Practically no solution behave as an ideal solution. The substances of similar structure and polarity mix together to form an ideal solution. प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई भी सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन है ही नहीं.
अगर हमने आइडियल सॉल्यूशन बनाना है तो उसके लिए हमें सिमिलर स्ट्रक्चर और पोलैरिटी के दो सब्सटेंस चाहिए जिनसे हमारा आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ नियरबी आइडियल सॉल्यूशन आर benzene and toluene, n-hexane and n-heptane, chlorobenzene and bromobenzene, ethyl bromide and ethyl iodine. Next topic is non-ideal solution. Non-ideal solution, the solution which do not follow Raoult's law at all concentrations and temperatures are termed as non-ideal solution. It also termed as real solution. जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर और टेम्परेचर्स के ऊपर, उन्हें हम नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। इनको हम रियल सोल्यूशन भी कहते हैं। The enthalpy of a non-ideal solution does not equal 0 and it also changes volume. For example, when sulfuric acid is mixed in water, then heat is released and a volume change is also observed. Thus, it is a non-ideal solution. किसी भी सोल्यूशन की जो इंथैल्पी होती है वो कभी ज़ीरो के बराबर नहीं होती, या तो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, ऐसे हो सकती है, पर वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगी। एग्जाम्पल, जैसे हमने सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करा वाटर के अंदर, तो कुछ हीट रिलीज़ होगी और वॉल्यूम भी कुछ ना कुछ अलग होएगी, वो भी ऑब्जर्व करी जाएगी। तो जिसके अंदर वॉल्यूम में भी कोई चेंज हो और हीट रिलीज़ हो उसको हम नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। Characteristics of non-ideal solution. It does not follow Raoult's law. The enthalpy during the formation of the solution is not 0 and delta H mixing not 0. The volume after mixing may not be constant, delta V mixing not 0. इसके अंदर भी वही है कि जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है वो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। सेकंड पॉइंट के अंदर इनकी इंथैल्पी कभी भी ज़ीरो नहीं होती और डेल्टा एच मिक्सिंग भी इसके अंदर भी ज़ीरो होगा और वॉल्यूम भी इसके अंदर ज़ीरो नहीं होगी। ना ही डेल्टा एच मिक्सिंग ज़ीरो होएगा और ना ही डेल्टा वी मिक्सिंग ज़ीरो होएगा। The non-ideal solution show deviation from Raoult's law. Based on deviation, the non-ideal solution are of the following two types: positive deviation and negative deviation. First of all, we'll learn about some new topic, which is positive deviation from Raoult's law. Most of the liquid mixture form a non-ideal solution. In this solution, the interaction between solute and solvent is weaker than the interaction between solute and solvent. Thus, AB interaction is less than AA interaction or BB interaction. Means मतलब सोलवेंट और सोल्यूट के बीच में होने वाली इंटरेक्शन है ना, वो सोलवेंट या सोल्यूट के बीच में होने वाली इंटरेक्शन से वीक होती है। पॉजिटिव डेविएशन के अंदर जो ए बी इंटरेक्शन है वो तो क्या होएगी, कम होएगी। किससे? ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन मीन्स प्योर वाले से कम होएगी। इसके अंदर क्या रखा है सेकेंड पॉइंट के अंदर, एज टोटल वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन प्रिडिक्टिव विद रिस्पेक्ट टू रोल्स लॉ। इसके अंदर जो रोल्स लॉ ने वैल्यू प्रिडिक्ट करी थी ना उससे ज़्यादा आएगी, इसलिए तो यहाँ पॉजिटिव डेविएशन है, मीन्स उस वैल्यू से क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। ये रोल्स लॉ की प्रिडिक्टेड वैल्यू थी। Sometimes the partial vapor pressure of a miscible liquid is greater than the expected vapor pressure as per Raoult's law. मतलब आइडियल के केस में अगर प्रेशर 20 का आ रहा था तो पॉजिटिव डेविएशन में प्रेशर 20 से ज़्यादा आएगा। मतलब जितनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस हमारी आइडियल में थी उससे कम अट्रैक्टिव फोर्स है वो पॉजिटिव डेविएशन में है। ठीक है, तो हमारा प्रेशर भी ज़्यादा ही होगा क्योंकि अगर पार्टिकल्स दूर दूर होंगे अट्रैक्टिव फोर्स कम होएगी और जो प्रेशर है वो ज़्यादा होएगा, वेपर प्रेशर। The total vapor pressure will be greater than the corresponding vapor pressure in the case of an ideal solution of the same composition. वही है, हायर प्रेशर किसकी वजह से होता है, उसका रीज़न क्या है? प्रेशर किसकी वजह से होता है? वेपर पार्टिकल्स की वजह से। तो अगर ज़्यादा वेपर बन रहा है तभी प्रेशर ज़्यादा आएगा। वेपर ज़्यादा बन रहा है तो लिक्विड स्टेट में उनको पकड़ना इतना आसान ही ना होगा। अट्रैक्टिव फोर्सेस है जो वीक है, इसलिए पार्टिकल है जो आसानी से भागी जा रहा है वेपर फेज के अंदर,
तो अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होंगी, तो वेपर प्रेशर है जो हायर प्रेशर होगा हमारा, है ना। तो यही बता रखे इसके अंदर टोटल प्रेशर वाला। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच सोल्यूशन इज लोअर्ड। दिस बिहेवियर ऑफ अ नॉन आइडियल सोल्यूशन shows a positive deviation from a Rolle's law. ग्राफिकली देखा जाए अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को, पॉजिटिव डेविएशंस को नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर, तो रोल्स लॉ की वैल्यू से हर एक वैल्यू है ना जो प्रेशर वाली, प्रेशर ऑफ टोटल प्रेशर, प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ ए, सभी रोल्स लॉ की प्रिडिक्टेड वैल्यू से ज़्यादा आएगी। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है। नेक्स्ट, पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम रोल्स लॉ। The solutions showing positive deviation have an intermediate composition at which the total vapor pressure is maximum, which is greater than the vapor pressure of a pure liquid. The boiling point of such solution is minimum. This type of solution boils at a constant temperature and get distilled without changing its composition. Such a mixture is called an isotope mixture. मतलब जो हमारा टोटल वेपर प्रेशर होगा ना, वो हमारा